पाकिस्तान सिख संगतां दी बड़ी डिमांड सी कि श्री हजूर साहब नूं जिहड़ी सी इत्थों फ्लाइट जांदी सी वो चल रही है जे कि जां कोई बंद दियां फ्लाइट आ रही इस संबंधी यात्री ने दसो कि की बेनीफिट सर जिस तरह मान वेखिया कि ਇਹ ਪਾਰਕ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ATZ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ईरान ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਨ दुबई की एयरबेस एयरपोर्ट भी उहदे नाल प्रभावित हुए सन जिस कारण के अमृतसर नूं आ रही टोटल फ्लाइटां बंद सन। इस संबंधी असीं वख-वख जिहड़े पैसेंजर आ रहे हैं उन्हां नाल भी गलबात करांगे अते इस तरह जिद्धरों ਦੀਆਂ फ्लाइटां शुरू होईयां ने एयरपोर्ट राजासान सीटे चहल पहल वेखण नूं मिल रही है। अपने सहयोगी सज्जन नूं कहांगा कि दिखाउण कि किस तरह ये जिहड़े यात्री आ रहे हैं। कोशिश करांगे कि इन्हां यात्रियों नाल भी गलबात कीती जा सके ਅਤੇ एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरैक्टर उन्होंने भी गल करांगे कि एक किस तरह की प्रॉब्लम सी अते एक किन्ना दी कोशिश अते किन्ना दी हिम्मत नाल ये जिहड़ी आ एयरपोर्ट की जिहड़ी आ फ्लाइटां शुरू होईयां ने। इस संबंधी आपां वख-वख पैसेंजरां नाल गल बतांगे। आओ गलबात करदे हां इन्हां पैसेंजरां नाल। एक दो दिन पहलां दुबई तो फ्लाइटां आउणियां श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्री हाईवे ते शुरू होईयां ने। इत्थे टैक्सी स्टैंड ते जिहड़े अपने ड्राइवर वीर ने ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੁਬਈ ਵਾਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲਾਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਕੁਝ % ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਰੁਟੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। जिस तरह के 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਘੰਟੇ 에어ਪੋਰਟ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੱਧ ਸੀ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਲਾਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਾਈ ਬੱਸ ਜਾਂ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 8-10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਸਹੈਪਨੈਸ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੈਬ ਵਗੈਰਾ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਣ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ ਆ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਬਿੱਲ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਗਲੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ 에어ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ 에어ਪੋਰਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ATV ਨਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ यात्री ने दसो कि की बेनिफिट मिल रहा है। जी सत श्री अकाल सर। इसमें देखिए हमारे जो काफ़ी गल्फ़ की जो फ़्लाइट्स थी 28 फरवरी ऑनवर्ड्स जो ईरान का और जो अमेरिका और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था तो एयर स्पेस में चैलेंजेस थे। एयर स्पेस को लगभग वो सेफ नहीं था तो जो एयरलाइंस थी
उन्होंने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दी थी, इंटरनेशनल गल्फ़ की फ़्लाइट स्पेशली। तो गल्फ़ में हमारी लगभग 10 फ्लाइट्स इन ऑपरेशंस थी 28 फरवरी ऑनवर्ड्स। तो आप ये देखिए कि अप्रैल के एंड में कतर ने सबसे पहले स्टार्ट किया। उसके बाद अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो अभी आप देखेंगे कि 17 मार्च को जो हमारी 17 मई से जो हमारी फ़्लाइट शुरू हुई है वो दुबई की जो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू की है। ये फ़्लाइट यहाँ से दुबई जाती है और दुबई से फिर अमृतसर आती है और अमृतसर से फिर आफ्टरनून में ये अपना 13-15 को फिर शारजाह जाती है। तो इस तरीके से हमारी 3 जो मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से और इसके लिए पैसेंजर्स को काफ़ी सुविधा होगी, पैसेंजर्स को आगे कनेक्शंस मिलने में भी, और दुबई के जो पैसेंजर्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स अमृतसर और इसके आसपास के रीजन से जो है ना गल्फ कंट्रीज को ट्रैवल करते हैं। सर ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲੀਆਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ भी ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ 'ਚ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई सी? देखिए हमारे पास इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बर्मिंघम है, लंदन गेटविक है, हमारा जो बैंकॉक की फ़्लाइट्स है और कुआलालंपुर है, सिंगापुर है, ये सब फ्लाइट्स हमारी ऑपरेट हो रही हैं। बट ओनली थिंग जो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस हमको आए हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं। इसमें हमारा जो कतर एयरवेज़ की थी जो हमारी ओमान को जाती थी जो, और हमारी जो इधर शारजाह और दुबई को जो हमारी स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट्स जाती थी, उनमें हमारे चैलेंजेज आए थे। टोटल हमारी 10 फ्लाइट्स में चैलेंजेज आए थे और लगभग एज ऑन डेट आज तक लगभग 700 फ्लाइट्स यहाँ पे हमारी कैंसिल हो चुकी हैं अभी अमृतसर एयरपोर्ट पे। और बट एक रिलीफ की बात यह है कि हमारा अप्रैल एंड में हमारी कतर एयरवेज ने शुरू किया है और अभी जो ये आप देखेंगे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी ये दुबई के लिए और शारजाह के लिए फ़्लाइट ऑपरेट की हैं। तो एज ऑन डेट अभी सिर्फ हमारे पास जो 4 फ्लाइट अभी कैंसिल चल रही हैं, बाकी रिमेनिंग फ्लाइट हमारी सब रिज्यूम हो गई है गल्फ के लिए भी 10 में से। सर ਹੁਣ एज ए टाइम डोमेस्टिक ਤੇ ਜਿਹੜੇ इंटरनेशनल फ्लाइटां ने कितनी चल रही? देखिए हमारे पास जो टोटल अभी जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो 37 हमारी ऑपरेट हो रही हैं और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट हैं वो हमारी 16 फ़्लाइट ऑपरेट हो रही हैं। तो इस तरीके से हमारी 53 फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं और हमारी 4 फ्लाइट्स अभी कैंसिल्ड चल रही हैं, जो कि हमारी दुबई की और शारजाह की 2 फ्लाइट्स हैं जिसमें स्पाइस जेट और इंडिगो हैं। अगर वो भी ऑपरेट करनी शुरू कर देती हैं फ्यूचर में तो हमारी टोटल 57 फ्लाइट्स ऑपरेट होनी शुरू हो जाएगी। सर जिस तरह सिख संगतां ਦੀ बड़ी डिमांड ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ वो चल रही है जे कि ਜਾਂ कोई बंद है जी? नांदेड़ साहब जी जी देखिए नांदेड़ साहब की फ़्लाइट लास्ट हमारे आरसीएस में ऑपरेट हुई थी और उसके बाद में आरसीएस का एक टाइमिंग्स फ्रेम था, क्योंकि गवर्नमेंट की उसमें सब्सिडी मिलती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ की सब्सिडी के बाद में जितने टाइम तक थी वो चली, उसके बाद में वो ऑपरेट नहीं हो पाई है। तो ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन रहेगा इसमें, मिनिस्ट्री का, कि वो आगे इसमें क्या डिसीजन लेते हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो अपने निवासी हैं और अपने आसपास के लोग हैं उनकी एस्पेरेंट्स को और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट से अपील है कि वो अपनी डिमांड रखें तो डेफिनेटली आगे चीज़ें वो बढ़ेंगी, मेरा ये मानना है। सर जिस तरह सुनना चाहे कि इतों शिमला ਜਾਂ श्रीनगर ये फ्लाइट आ बहुत घट रेटा में चल रही हैं, इतों अपने स्टार्ट ने जी? श्रीनगर की फ़्लाइट हमारे पास है, बट वो पहले हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो अभी वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। शिमला की फ़्लाइट भी हमारी आरसीएस में चल रही थी, वो चूँकि आरसीएस में अगेन वो फंडिंग का इशू होता है, तो अभी वो फ़्लाइट भी एक सर्टेन टाइम तक, जब तक उनको आरसीएस में अप्रूवल थी तब तक चली, उसके बाद उसमें फर्दर अप्रूवल उनके पास नहीं मिली है। मे बी कि एयरलाइंस ने भी कुछ अप्लाई ना किया हो, क्योंकि एयरलाइंस के पास भी कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रेंट हैं, शॉर्टेज हैं, और वो भी मैक्सिमम उसी रूट पे फिर जहाँ वाइबिलिटी होती है उधर ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं एयरलाइंस। सर जिस तरह मैं वेख्या कि ਇਹ ਪਾਰਕ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, उस की बनाया जा रहा है श्रोमणी कमेटी वालों? जी देखिए हम जब यहाँ पे मैं लगभग अक्टूबर एंड में मैं ज्वाइन किया था एज एयरपोर्ट डायरेक्टर मैं, तो हम श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैनेजमेंट के लोगों से मिले थे, धामी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी और उन लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया था कि चूँकि सब कुछ यहाँ पे गुरु जी के नाम पे हमारा एयरपोर्ट भी गुरु रामदास जी के नाम पे ही है, और हम रिक्वेस्ट किए थे कि वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ की ब्यूटी के लिए और यहाँ की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो एक पार्क अभी हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें काफ़ी पैसा लगा के वो उसको डेवलप कर रहे हैं। उसमें ऑलरेडी खांडा साहिब की एक काफ़ी बड़ी स्टैचू लगी हुई थी, तो उसको ब्यूटीफाई करने के बाद उसमें पूरा ग्रीन पाथ बनाने के बाद उसमें ग्रेनाइट वगैरह लगा के उसको बहुत ही एलिगेंट बनाने का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है और काफ़ी काम उसमें हो भी गया है। वाहिगुरू जी की फतेह जी। मैं मनप्रीत सिंह अं ना जॉब करते हैं जूई के इंजीनियरिंग जॉब करते हैं, शिप्पा का साडा काम है उत्थे मेंटेनेंस का।
ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਪੂਰੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ